Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sadiq Amar, your chemistry teacher. Welcome to the Inclined Thinker. Dear students, today we will discuss the lecture 4 of the chapter number 7. The name of the chapter is Electrochemistry. The topic of the discussions today is oxidizing agent and reducing agent. These two topics are very important in this context, that why we study the oxidizing agent and why we study the reducing agent. So it is very important to see before discussing the before the discussion of the oxidizing agent and the reducing agent. First of all, it is very clear to discuss the point of the oxidation and the reduction. If we are very clear about the three definitions of the oxidation and definition of the reduction, if we are well familiar and know the applications of the oxidation and the reduction, then it is very easy to understand the oxidizing agent and the reducing agent. As we are familiar that there are three definitions of the oxidation and three definitions of the reduction. As we have already discussed that addition of the oxygen is called oxidation, removal of hydrogen is also called oxidation, and loss of electron is also called oxidation. In the context of the reduction, removal of the oxygen, addition of hydrogen, and gain of electron. These are the three definitions. Those are very familiar and those are very important for the context of the oxidizing agent and the reduction agent. Now we are going to discuss the concept of the oxidizing agent and the reducing agent. First of all, what is the oxidizing agent? It is very familiar and it should be very we should keep it in our mind that oxidizing agent mean it is basically a species which is oxidizing the other but itself it is reducing. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरों की तो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन उसकी अपनी जो है वो रिडक्शन हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्डिंग दैट व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. There are two definitions. First of all, we will see the definition. It is basically a species that oxidizing the substance. It's mean कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी. ये कैसे ऑक्सीडाइज करेगी? ये ऑक्सीडाइज करेगी बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. It is called oxidizing agent. I am repeating, the species that oxidizes a substance by taking the electrons from it is called oxidizing agent. And similarly, if we are seeing the second definition of the oxidizing agent, it's mean it is basically a substance, atom or ion which is reduce itself. मैंने पहले भी बताया ये दूसरों की ऑक्सीडेशन करेगा, खुद ये रिड्यूस होगा. A substance, atom or ion which is reduced itself by gaining the electron. ये देखिए उधर भी taking the electron है, इधर gaining the electron है, एक ही बात है. is called oxidizing agent. If we see the examples, are the non-metals are oxidizing agent as they have tendency or capacity to accept the electron. They are highly electronegative or they are electronegative elements, so non-metals are oxidizing agents. Now we are going to see the reducing agent, that what is the reducing agent. When we see what is the reducing agent, we will discuss the concept of species that reduces the other but itself oxidize. It's mean कि जो reducing agent होगा ये दूसरों को reduce करेगा, खुद oxidize होगा. अब ये दूसरों को reduce कैसे करेगा? ये दूसरों को reduce कैसे करेगा? by donating the electron or by losing the electron. The species that reduces the substance by donating the electron to it is called reducing agent. And the other definition of the reducing agent is that a substance, atom or ion which is oxidized by losing electrons is called reducing agent. Now all the metals are good reducing agent because all the metals have tendency to lose the electron, therefore they are called reducing agent. Now we are going to see the examples. First of all, we will see the redox reaction with respect to the electrons. We will see the
chemical reaction. First of all, we will see the wording. The chemical reaction in which oxidation state of the one or more substance changes are called oxidation, reduction or redox reaction. यानी अगर कोई हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं और उसमें क्या होता है कि उसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है एक की या एक से ज्यादा की, तो हम कहते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी हम जो है वो एग्जांपल देख रहे हैं। कौन सी एग्जांपल देखने जा रहे हैं हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं, ये देखें जिंक है। होगा क्या कि ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ से अटैक करेगा, राइट, और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये देखिए ये Zn और हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर लिया क्योंकि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। अब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। ये देखें Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, हाइड्रोजन की जो है वो +1 है, क्लोरीन जो है उसकी भी +1 है। जब हम इधर आते हैं तो ये देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 हो गई है। इसका मतलब है कि 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये देखें 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गई है। इट्स मीन कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अब जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन +1 था, इधर जाकर क्या हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो गई है। अभी हम देखें जिंक क्या था, 0 था और ये +2 हो गया, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, यानी कि इंक्रीज हो गई है। इसने क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो +2 चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन +1 था और यहां से क्या हुआ कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 हो गई है। अब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है बेसिकली, और ये रिडक्शन हुई है। मैं स्टूडेंट्स एक बात आपको बताता चलूं, ये बहुत जहन में रखने वाली बात है। ये देखें ये जिंक था, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन ये जहन में रखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो क्या होगा, अब इसके उलट होगा कि ये क्या होगा, ये इसका होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये खुद ऑक्सीडेशन हुई है तो ये अपने ऑपोजिट पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये देखें यहाँ पर हाइड्रोजन की जो है वो रिडक्शन हुई है तो ये क्या होगा, ये होगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये उलट होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। ये देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है जिंक की तो ये खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इधर रिडक्शन हुई है तो ये क्या होगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट की जब हम बात करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, सिमिलरली इन द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो आपस में मिलकर ये जो है वाटर बना रहे हैं। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 0 है, ऑक्सीजन भी 0 है। यहाँ पर जाते हैं तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर आयन इन दिस रिएक्शन। ये देखें ये क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई है और यहाँ पर ऑक्सीजन ने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 हो गई है। अब होगा क्या, अभी हम इसको जो है 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या। ये देखें ये हाइड्रोजन था, जब हमने हाइड्रोजन की बात की, ये देखें ये हाइड्रोजन था। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर 0 था और यहाँ पर क्या हो गया, +1 हो गया। अब ये देखें क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हैज चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +1 स्टेट बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो +1 हो गई। अब हुआ क्या है, ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है। मैंने बताया था चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है ये खुद एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो बिहेव करेगा, जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें हाइड्रोजन जो है वो एज ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या था, 0 था और इधर क्या हो गया, -2। जब ये इधर -2 हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -2 हुई है। अब -2 क्यों हुई है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसकी ये खुद रिड्यूस हुआ, इसने दूसरे को रिड्यूस किया है और खुद ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो रिएक्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।